کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے کارخانے میں خوفناک دھماکہ، دھماکے کے بعد کارخانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کارخانے سے دھماکوں کی آوازیں، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، 30 افراد زخمی ہو گئے۔ کارخانے میں بڑی تعداد میں آتش بازی کا سامان موجود تھا۔ فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کارخانے میں پھنسے ملازمین کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا، کوشش کی جائے کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ کراچی میں پھر بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بارش، گلشن حدیث، شاہ فیصل ٹاؤن، مری کینٹ، ایم اے جناح روڈ پر بھی برسات، سرجانی ٹاؤن، مگھوپی ٹاؤن، ناردرن بائی پاس، بلدیہ ٹاؤن، ماڑی پور میں بھی بادل جم کر برسے۔ شہر پر کالی گھٹاؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ نیا سسٹم 23 اگست کو انٹری دے گا۔ تین دن ہو گئے بارش کے دوران گئی بجلی واپس آئی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں اب تک بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کے الیکٹرک کے 240 فیڈرز تاحال بند۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد، ملیر میں بجلی بند۔ کورنگی، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، سرجانی ٹاؤن کی بجلی بھی بحال نہ ہوئی۔ پی ای سی ایچ ایس اور ڈی ایچ اے میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مختلف علاقوں میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ اسکیم 33 اور صفورہ کے عوام کا صبر جواب دے گیا۔ صفورہ چورنگی پر احتجاج، مشتعل افراد نے سڑک بلاک کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے۔ ملزم کے خلاف آپ کے پاس زبانی اور الیکٹرانک شواہد کے علاوہ کیا موجود ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک ملزم 2 ماہ تک ضمانت پر تھا۔ کیا 2 ماہ کا عرصہ پولیس کو تفتیش کے لیے کافی نہیں تھا؟ ضمانت ملنے کا مطلب بریت نہیں۔ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو ضمانت پر ہونے کے باوجود سزا ہوئی۔ قوم جانتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن کیس میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو شواہد کی بنیاد پر شفاف ٹرائل کے ذریعے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان لوگوں نے حساب دینے کے بجائے اسلامی ٹچ اور مذہب کارڈ استعمال کیا۔ دیکھیں، آج جو بیلیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسوں میں، یہ آخری کیس تھے جن میں خان صاحب کی بیل ہونا باقی تھی۔ اب اس کے بعد صرف ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا، جس کو کہتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کا جو پورا بیانیہ تھا، آج وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا بیانیہ؟ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، عدالتی فیصلے سے کیسز بے بنیاد ثابت ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف القادر ٹرسٹ کا کیس باقی ہے۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی القادر کیس سے بھی بری ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور بولے، بانی پی ٹی آئی کی عدالت سے ضمانت آئینی اور قانونی فیصلہ ہے۔ ضمانت نے ثابت کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہیں۔ Reaffirmed Pakistan's full support to China on all issues of its core concern. Next year, Pakistan and China will celebrate the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. In this context, Foreign Minister Wang Yi and I agreed that our two countries would organize a series of events and programs to celebrate this auspicious event. پاکستان اور چین کا امن، استحکام، خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور چین میں سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے۔ خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی وزیر خارجہ بولے، مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ سی پیک کی تعمیر و ترقی اور 2 طرفہ تعاون کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ We both agree that
The ironclad friendship between China and Pakistan is growing from strength to strength, and the China-Pakistan all-weather strategic cooperative partnership is unbreakable. China highly commends Pakistan's tireless efforts and immense sacrifice in combating terrorism. फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया गया, ना ही कोई सियासी बात की गई। डीजी ISPR ने वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सहाफ़ी के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। इवेंट में PTI और ना ही मुआफ़ी का जिक्र हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सहाफ़ी ने नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुआफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। 9 मई करने वालों और मंसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया भी मौतरे। वाशिंगटन टाइम्स ने उन्हें मर्द आहन और जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के लिए मुमकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ मजबूत आसाब, सख्त फैसले लेने की सलाहियत और नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और वो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के मुतालबे करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इंसदादी दहशतगर्दी में मजीद मजबूत हुए, जबकि पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा और ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म है। गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट, कोई काम नहीं हुआ। कल मेरे भी जो है ना हादसे से बचा हूँ। ये देखा आपने, गटर खुला हुआ है, इधर मैं गिरा हूँ। यहाँ पे जितना भी पानी जमा हुआ है इस वक्त, ये कल से जमा हुआ है, आज तक नहीं आया। सब लोग यहाँ पे जाके ना तस्वीरें खिंचा रहे हैं अपनी। कराची मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, ठीक है, उसको ये मेयर लीड कर रहा है। इसकी कहते हैं ना, इसका काम ही नहीं है, ये काम ही नहीं कर सकता है ये। बारिश ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल कर रख दिया। 9 तामीरशुदा सड़कें धंस गईं, अंडरपासेस तालाब बन गए। बारिश के तीसरे दिन भी निकासियाब के मसाइल बरकरार, सड़कें टूट फूट का शिकार। ड्रिग रोड, स्टेडियम रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर बरसाती पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया, आराम बाग, सिंध हाई कोर्ट, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में भी बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। कारसाज, मलिर हॉल्ट और दीगर मुकामात पर खराब गाड़ियां सड़कों पर मौजूद। सड़कों पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। मॉनसून की शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक, सियासी कायदीन से राबता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मूसलाधार बारिश, शहरी सैलाब और कीमती इंसानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। सिंध हुकूमत को वफाक की जानिब से हर किस्म की मुआवनत की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन, NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुझे थोड़ी इस बात पर अफसोस हुई, ठीक है, लोगों को जो तकलीफ है उसका एहसास हम सबको है, लेकिन कहीं कहीं पे हमने देखा कि हमारे साथ ज्यादती भी की जा रही थी। कहीं पे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई कैंपेन चल रही हो हुकूमत के खिलाफ और बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी। हमें वो जमातें भी इस बार तनकीद करती हुई नजर आई जिन जमातों ने माजी में, जब उनके अदवार में 100 मिलीमीटर की बारिशें हुई थी, तो कराची शहर ने एक दिन में 100 से ज़्यादा जो है वो अमवात देखी। अनफॉर्चुनेट बारिश के बायस लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत सबसे माजरत ख्वाह है। सूबे में अमवात हुई, हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, अफसोस हुआ कि हमारे खिलाफ मुहिम चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों जाने गईं, इस पर तो ट्रांसमिशन नजर नहीं आई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ी नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदादी मुनशियात से मुतालिक इश्तराक कार पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर का बारिशों और सैलाबी रैलों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा, हालिया तारीख में ऐसा लीडर नहीं जिसने हज़ारों इंसानों को तबाही से बचाया। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। इस BFC को सही मानों में इसका जो असल जो इसका ऑपरेशन है, ताकि
आने वाले चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो दूसरे शोबों से उनका ताल्लुक़ है, वो जब आएँ तो उनको वही फैसिलिटी मिले, वही गाइडेंस मिले जो कि दुनिया में ऐसे BFCs मुहैया करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड और उनकी टीम को BFC के क़याम पर मुबारकबाद देनी चाहिए। उन्होंने BFC में HR के शोबे को इंतहाई काबिल और कस्टमर से बातचीत के अंदाज को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। कहा बदकिस्मती से क़याम में ताख़ीर हुई, देर आए दुरुस्त आए। रहीम यार खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, एम्बुलेंस और मुसाफिर बस में तसादुम, 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद की जानें चली गईं। एम्बुलेंस THQ खानपुर से शेख ज़ैद अस्पताल जा रही थी। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक खानपुर से है। सवाबी में 4 रोज़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, मलबे से 16 खवातीन, 9 बच्चों समेत 41 अफराद की लाशें निकाली गईं। 7 अफराद अब भी लापता हैं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा वाद दालवारी में 37 अफराद की हुई। तर्जुमान KP के हुकूमत का कहना है कि तमाम लाशों की बाजियाबी के बाद बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। क्लाउड बर्स्ट से दालवड़ी बाला में 17 घर, सरकोई में 1 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। मजमूई तौर पर 27 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयाँ जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बोनेर में सैलाबी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर उम्मीदवारान के नामों की अबूरी फहरिस्त जारी। 3 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, PTI के एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज के नाम शामिल। उम्मीदवार अहमद शहरियार ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इंतखाब 9 सितंबर को होगा। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्रार मौत को मेडिकल बोर्ड ने खुदकुशी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक गोली इंतहाई करीब से मारी गई, जिससे खुदकुशी का तासुर मिलता है। गाड़ी और जिस्म से किसी और शख्स के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी टीम को खावर हुसैन के खून के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार। ज़राए का कहना है कि खावर हुसैन की फैमिली फिलहाल मुकदमा दर्ज करवाना नहीं चाहती। मुजफ्फराबाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस गिरफ्तार। मुलजिम पर मुजफ्फराबाद में चहला बांडी की बिलाल मस्जिद की लोकेशन दुश्मन को देने का इल्जाम। भारी रकम वसूल करने का इंकशाफ। मुलजिम ने व्हाट्सएप के जरिए GPS लोकेशंस भारतीय एजेंसी को फराहम की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियाँ, कौमी प्लेयर्स को डेली अलाउंसेस की अदायगी का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने तारिक बुगटी, राना मुजाहिद को एक बार फिर तलब कर लिया। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा को भी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। यासिर पीरजादा हॉकी फेडरेशन की मुबैना माली बेज़ाब्तियों और माली तनाज़ात के हवाले से कायमा कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। रबीउल अव्वल का चांद कब नजर आएगा, 12 रबीउल अव्वल कब होगी, स्पार्को ने पेश गोई कर दी। रबीउल अव्वल 1447 हिजरी का चांद 24 अगस्त को नजर आने के कवी इम्कानात। यकुम रबीउल अव्वल 25 अगस्त, 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर बरोज जुमे को होने की तवक्को। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद 23 अगस्त को 11:06 पर दिन में पैदा होने की तवक्को। हुकूमत का अशरा रहमतुल लिल आलमीन कौमी और सूबाई सतह पर शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का सलामती काउंसिल पर 2 टोक मौक़िफ़। दहशतगर्दी पर होने वाले इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, समझ से बालतर और नाकाबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल नहीं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द एहतिसाब से बच निकलते हैं। उन्होंने TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के गठजोड़ को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। बोले अफगान उबूरी हुकूमत दाइश के खिलाफ सरगर्म, TTP को पनाह मुयसर है। अस्करियत पसंद अब भी अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में महफूज हैं। गजा में आग और खून का घिनौना खेल जारी। सेहूनी फौज ने गजा सिटी पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। 24 घंटे में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 3 अफराद भूखे हथियार से जान गंवा बैठे। भूख से मरने वालों की तादाद 269 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने खुराक के मुतलाशी 30 अफराद को भी मौत के घाट उतार दिया। WFP ने खबरदार करते हुए कहा कि ग़िज़ाई क़िल्लत से गजा के लोग आम बीमारियों से भी मरते जा रहे हैं। उनरवा के मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है।
इंसाफ की दुनिया का बेहतरीन सितारा डूब गया। हर दिल अजीज अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन फैसलों और इंसानी हमदर्दी के लिए मशहूर थे। फ्रैंक कैप्रियो की अदालती कार्रवाइयों की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर नए रिकॉर्ड बनाए। और जापान की मगरबी रियासतों में शहाब साकिब से आसमान रोशन। मशहूर कुल नज़ारे को जापान में क्यूशो से शिकोको तक देखा गया। इस मंजर ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया।